بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ویورس، نئے آنے والے سبسکرائبرس اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بس جیسے کہ ہمارا کل پروگرام ختم ہوا تھا کہ اگلے روز جمنا کے کنارے کالپی پہنچا، جہاں وہ ایک تمبولی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ وہاں کچھ لوگ آئے جن کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ تاجر ہیں اور بانڈا کے راستے چھترپور جا رہے ہیں. چھترپور کا نام سنتے ہی اسے یاد آ گیا کہ وہاں کہیں ٹھگ رہتے ہیں اور یہ امیر علی کا قصہ ہے. لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کی تمام زحمتیں آج تمام کر رہا ہوں کہ آج آخری اس کا ایپیسوڈ ہے. مجھے ویوز نہیں چاہیے، مجھے سبسکرائبر چاہیے جن تک میں اپنا پیغام پہنچا سکوں اور اپنے دل کی باتیں، جس میں کہ سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں اور میڈیکل کی بھی ہیں. مقصد یہ کہ مکسچر ہمارا یہ چینل ہے آپ لوگوں کا. تو امید ہے کہ آپ ان پروگراموں کو دیکھیں گے اور سراہیں گے. تو ہم جو ہے شروع کر دیتے ہیں کہ امیر علی ان تاجروں کے ساتھ چل پڑا. کچھ روز بعد یہ لوگ بانڈا پور پہنچ گئے. امیر علی شہر میں گھوم پھر رہا تھا کہ اس کی ملاقات حرمت سے ہوئی، کہ جو کہ گنیش کے ساتھ مل کے ٹھگی کیا کرتا تھا. دونوں بہت خوش ہوئے. حرمت نے کہا کہ میری تقدیر بھی میرے ساتھ نہیں، یوں بھی ٹھگوں کے لیے ایک کڑا وقت ہے، مگر یہ بھی ہے کہ بڑے اچھے شگون نظر آ رہے ہیں. امیر علی باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے اور آخر میں مرتے وقت بھی وہ بحث کی تمنا کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، کہ جو کہ آگے چل کے بیان ہوگا. کیوں نہ کچھ ساتھی اکٹھے کیے جائیں اور ہم پھر کام پر دوبارہ نکلیں، یعنی لوٹ ماری کریں، لوگوں کو قتل و غارت گری کریں. جھٹ منصوبے بننے لگے. حرمت نے 15 ٹھگ ایک دم جمع کر لیے. ایک ٹھگ، ایک ہیروئن چی، ایک افیون چی، ایک بھنگ پینے والا، اور یہ جو بھی جتنے نشے کرنے والے ہیں ان کو ان کے ساتھی ہر جگہ مل جاتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں آپ ڈھونڈیں گے نا آٹومیٹکلی پتہ نہیں کہاں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ٹھگ بھی جو ہے نا فوراً انہیں مل گئے اور 15 ٹھگ انہوں نے جمع کر لیے. اگلی صبح شگون دیکھے گئے جو اطمینان بخش تھے. دوپہر تک کالپی میں ملنے والے تاجروں کا قافلہ آگے روانہ ہو گیا. یہ سب ان کے ساتھ چل پڑے. ایک طے شدہ مقام پر ان سب تاجروں کو مار دیا گیا. وہ 9 تھے اور ٹھگ جو تھے وہ 17 تھے. ان سے فارغ ہو کے امیر علی اور حرمت نے چوری چھپے جالون جانے کا فیصلہ کر لیا. ہر چند کے جان جانے کا خطرہ تھا، مگر امیر علی اپنا دفن کیا ہوا خزانہ نکال کر ان مولوی صاحب کے سپرد کرنا چاہتا تھا کہ جنہوں نے اس کی بیٹی کو پناہ دی ہوئی تھی. باقی ٹھگ واپس کالپی چلے گئے. ان دونوں نے بھیس بدلا اور جٹی بنا کے بھبوت مل کر گوسائیں بن گئے. انہوں نے جالون سے باہر پڑاؤ ڈالا جہاں بہت سے ہندو انہیں بھکشا دینے کے لیے آئے، اور ان دونوں بہت کچھ پوچھنا چاہا. لیکن حرمت نے کہا کہ یہ بابا کئی سال سے اپنی زبان بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور چپ ہیں. لوگوں نے امیر علی کے چرن چھوئے اور سیس نوائے. اندھیرا ہو گیا تو یہ دونوں اس ویران مقبرے میں پہنچے جہاں کبھی امیر علی نے مشکل وقت کے خیال سے اپنا خزانہ دبایا تھا. اس نے جس پتھر کے نیچے دولت چھپائی تھی وہ پتھر اپنی جگہ جمع ہوا تھا. اسے جوں ہی اٹھایا اس کے نیچے سے وہ کشکول نظر آ گیا اس کو، جس میں پیسہ رکھا تھا، یعنی 30 اشرفیاں سونے کی، 4 سلاخیں، موتیوں کی 2 لڑیاں، کچھ قیمتی پتھر اور ایک ہیرا. یہ ساری دولت محفوظ دیکھ کر دونوں بہت مسرور ہوئے. جب تاریکی بڑھی تو امیر علی وہی گوسائی کے بھیس میں چلا اور مولوی صاحب کے گھر جا پہنچا. وہ سامنے برآمدے میں بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے تھے. گوسائی کو دیکھ کر ڈر گئے. امیر علی نے کہا کہ میں آپ سے ایک بھیک مانگنے آیا ہوں. مولوی صاحب نے کہا کیا چاہیے؟ امیر علی نے کہا کہ میرا ایک راز سنیے، میں امیر علی ہوں. یہ سن کر مولوی صاحب ذرا پیچھے سرک گئے اور خوف سے کانپنے لگے. امیر علی نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا اور پوچھا کیا میری بیٹی مجھے یاد کرتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ اکثر تمہاری باتیں کرتی ہے، لیکن ہم نے اس سے یہ کہا کہ امیر علی مر چکا ہے. امیر علی بولا آپ نے بالکل صحیح کہا. پھر امیر علی نے اپنے خزانے کی پوٹلی نکالی اور کہا کہ میں ایک خزانہ دبا گیا تھا جو محفوظ مل گیا. یہ سب میری بیٹی کی خاطر لے لیجئے. مولوی صاحب برہم ہو کے بولے کہ لاشوں سے لوٹی ہوئی دولت اس گھر میں آئی تو ہم پر عذاب ٹوٹے گا، تم اسے لے جاؤ. امیر علی نے کہا کہ یہ قیمتی چیزیں میری بیوی اپنے ساتھ دکن سے لائی تھی اور یہ بچی کی ماں کی امانتیں ہیں.
मौलवी साहब के इसरार पर इसने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि मेरी बेटी की बस एक झलक दिखला दीजिए। मौलवी साहब उसे जनान खाने की दहलीज तक ले गए। अंदर से 9 उम्र लड़कियों के बोलने और हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थीं। इनमें से एक आवाज़ चांदी के खनकते सिक्कों जैसी थी। अमीर अली ने पर्दे की आड़ से झांका। एक नाजुक अंदाम लड़की नजर आई, नाक नक्शा हूबहू अजीमा जैसा। अमीर अली का सारा वजूद तड़प उठा। इसका दिल चाहा कि दौड़ कर एक बार ज़रा देर के लिए बेटी को सीने से लगा ले, मगर वो दिल महसूस कर रह गया। दिल में बच्ची को दुआएं देता हुआ उल्टे कदमों वापस लौट आया। मौलवी साहब के हाथों को चूमा और कहा, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। बाहर आकर वो देर तक रोया। फिर अपना घर देखा तो आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। घर वीरान पड़ा था। वो तेजी से लपका और शहर का दरवाज़ा बंद होने से पहले बाहर निकल गया। दोनों वापस कालपी पहुंचे। बाकी तमाम ठग वहाँ उनकी राह देख रहे थे। अब सारे के सारे सर जोड़कर बैठे। अमीर ने कहा कि वापस जालून जाने का कोई इम्कान नहीं, राजा हमें तोप दम कर देगा। मेरी तजवीज़ है कि चलकर लखनऊ में रहा जाए। वहाँ का हाकिम नरम दिल है और उसके सिपाही सुस्त हैं। सब ने ये तजवीज़ मान ली और फैसला हुआ कि कश्ती के ज़रिए चला जाए। गर्ज के ये टोली लखनऊ जा पहुँची और इक्का दुक्का मुसाफिरों को और राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया। एक रोज़ ताजिरों का काफिला हाथ लगा, जिसे बातों में लगाकर एक वीरान इलाके में ले गए और अभी उन्हें मारकर गिराया ही था कि घोड़ सवार सिपाहियों का दस्ता अचानक आ पहुँचा। फौरन ही भगदड़ मच गई। 2 ताजिरों के गले में पूरी तरह फंदा न पड़ सका। वो बच गए। 2-4 ठग भाग निकले, लेकिन अमीर अली समेत बाकी सब पकड़े गए और शहर जाकर कैद खाने में यूं डाल दिए गए कि जिसे एक दूसरे को किसी की कोई खबर न थी। 8-10 दिन बाद अमीर अली ने सिपाहियों से पूछा कि हम लोग जिएंगे या फांसी चढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे 7 साथियों को तो फांसी हो चुकी है, अलबत्ता तुम लोगों को कत्ल करते हुए नहीं देखा गया और जिंदा बच जाने वाले ताजरों ने भी तुम्हारी निशानदेही नहीं की है। इसलिए मुमकिन है कि शायद तुम बच जाओ, लेकिन बाकी सारी उम्र यहीं गुजारने के लिए तैयार रहो। अमीर अली का जहन कभी चैन से नहीं बैठा। इसने फरार के मंसूबे शुरू कर दिए। हाँ, जो जेलर आते जाते थे, इनमें से एक का सलूक अच्छा था। वो कैदियों का ख्याल किया करता था, लेकिन अमीर अली ने उसका ख्याल नहीं किया। अमीर अली ने उसे बातों में लगाया और कहा कि मैंने 500 रुपये कहीं छुपा कर रखे हैं। अगर तुम मुझे एक तेज़ रेती फाइल, जिससे कि लोहे को घिसा जाता है, वो दे दो तो मैं तुम्हें इस दौलत का पता बता दूं। उसे निकालो, आधी रकम तुम खुद रख लो। नदी के किनारे 2 मकबरों में, जो एक शिकस्ता हालत में है, उसके मशरकी हिस्से में फर्श के 4 पत्थर आसानी से निकल आते हैं। इनके नीचे ये रुपए रखे हुए हैं। मिल जाए तो अपना हिस्सा ले लो और हमें फरार करा दो। अगली शाम वो नरम दिल जेलर तेज विलायती रेती लेकर आ गया और अमीर अली को बताया कि बड़े दरवाजे में जो खिड़की खुलती है, इसमें ताला नहीं होता। अमीर अली और इसके साथ जो कैद थे, उसके साथी, उन्होंने रात भर अपनी बेड़ियों और जेल की एक सलाख को काट डाला, लेकिन अभी कुछ काम बाकी था कि दिन का उजाला फैल गया। दोनों ठग अगली रात के मुंतजिर थे कि देखा कि जेल का दारोगा चला आ रहा है। इसने आते ही बेड़ियों का मायना किया, जो बड़ी हद तक कट चुकी थीं। इस पर वो बुरी तरह बरहम हुआ और कहा कि तुम लोग शायद छूट जाते, मगर इस हरकत के बाद तुम्हारी बाकी उम्र यही गुजरेगी। दोनों ठगों को वहाँ से निकाल कर निहायत तंग कोठरियों में डाल दिया गया। यूं लखनऊ के कैद खाने में 12 साल गुजर गए। उसी बरस ओध के बादशाह का इंतकाल हो गया और तमाम पुराने कैदी रिहा हो गए। अमीर अली को जेब खर्च के 5 रुपये मामूली लिबास देते हुए दरोगा ने कहा कि मीर साहब, बहुत हो चुका, खुदा के वास्ते अब राह रास्त पर आ जाइए। अमीर अली सिर्फ अच्छा कहकर जेल से बाहर आ गया। अब इसे बेटी की याद ने सताया। वो चलते चलते जालून पहुंचा। मौलवी साहब के घर पे दस्तक दी तो अब उस मकान में कोई और आबाद था और बताया गया कि मौलवी साहब दिल्ली चले गए हैं और उन्होंने जिस लड़की को पाला था उसकी कहीं शादी हो गई। अमीर अली शहर में मारा फिरा। उसके पुराने साथी मर चुके थे या फांसी चढ़ चुके थे। कुछ नए ग्रोह और सरेदार नमूदार हुए। किसी ने एक नए ठग का नाम लिया कि फरंगिया। अमीर अली ने एक बार उसे देखा था। उस वक्त वो एक कमसिन लड़का था। एक बहुत बूढ़ा ठग मिला जिसने अमीर अली के माँ बाप को हलाक होते देखा था। उसने बताया कि तुम्हारी माँ को गणेश ने अपने हाथों से मारा था। वही गणेश कि जिससे अमीर अली को पहले ही नफरत थी और वो उसके साथ काम भी किया करता था और अमीर अली भी उससे काम लिया करता था। जालून से अमीर अली तैयारी पहुंचा, जहां उसे कुछ ठग मिल गए और ये इनके साथ चल पड़ा। कई राहगीरों को मारा और 40 रुपये कमा लिए। 40 रुपये के लिए उसने कई राहगीरों को मार दिया। इतना जालिम।
अब इसने दक्कन का रुख किया, जहाँ ठगी अभी तक जोरों पर थी। वो सागर से गुजरा, जहाँ गणेश से उसकी मुलाकात हुई, वहाँ ये लोग रेवा जा पहुँचे। इसी दौरान उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ सुनगुन मिली। वो चाहता था कि एक बड़ी रकम अपनी बेटी को पहुँचा दे ताकि उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाए, लेकिन बेटी नहीं मिली। अमीर अली ने फिर एक टोली की क़यादत संभाल ली और इस बार कलकत्ते जाने का फैसला किया। बहुत नाहंजार था। ये सफ़र दुश्वार था क्योंकि रास्ते में अंग्रेज़ों ने ठगों का जीना दोभर कर रखा था। वहीं उसे खबर मिली कि उसके सर की कीमत 500 रुपये मुकर्रर की गई। इस खबर पर खौफज़दा होने के बजाय वो मसरूर हुआ कि इसका वजूद अब भी बेकीमत नहीं है। आलम देखिए बेहिसी का। ये काफिला एक बार फिर सागर पहुंचा। एक बोसीदा इमारत में रात गुजारी, अपने एक साथी को चौकीदारी पर बैठाया और सुबह पौ फटने से पहले उठकर रवाना होने का कसद करके सो गए। सुबह चले। 2 ठगों का रवैया कुछ अजीब सा लगा। रास्ते में एक चश्मे पर मुँह हाथ धोने के लिए रुके ही थे। कुछ घोड़सवार, कुछ प्यादा सिपाहियों ने, जो इनकी ताक में थे, अचानक धावा बोल दिया। अमीर अली ने चाहा कि दौड़कर अपने हथियार उठाए। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और फौरन रस्सियों में जकड़ दिया। इसका कहना था कि मेरी तलवार मेरे पास होती तो मैं खुद को मार लेता, लेकिन जिंदा गिरफ्तार ना होता। हुक्काम को इसकी खबर देने वाले ठग बहुत खुश थे कि अब साहब लोग हमें इनाम देंगे। जिन लोगों ने मुखबरी की थी और वादा माफ गवाह बन गए थे। अमीर अली तीसरी बार जेल में डाला गया। उसे एहसास था कि अब के रिहाई मुमकिन नहीं, कि फरंगियों ने सख्त कानून बना दिए हैं और वो किसी भी ठग के साथ किसी रहमदिली के मुजाहिरे के रवादार नहीं है। कुछ देर बाद अमीर अली को एक अफसर के सामने पेश किया गया जिसे फरंगी हुकूमत ने ठगों को पकड़ने का काम सौंपा था। वो बोला, अच्छा तो तुम हो अमीर अली। इसके बाद उसने अपने मुंशी से कहा, ज़रा इस शख्स पर लगने वाले इल्ज़ाम पढ़कर सुनाओ। मुंशी अपनी पोथी खोलकर शुरू हो गया और बकौल अमीर अली कमबख्त के सारे इल्ज़ाम सही थे। अमीर अली ने सिर्फ इतना कहा कि आप अंग्रेज़ लोग अपने इंसाफ की वजह से मशहूर हैं, यकीन है आप इन इल्ज़ामात के सबूत भी फराहम करेंगे। इस पर अफसर ने कहा कि बुलाओ वादा माफ गवाहों को। अब एक एक गवाह को बुलाया गया। सारे के सारे अमीर अली के गुरोह के लोग थे। उन्होंने एक एक कत्ल का अहवाल कह सुनाया और अफसर ने कहा, बहुत सी कब्रें खोद कर लाशें भी हमने बरामद कर ली है। इसके बाद अमीर अली को दोबारा कैद खाने में डाल दिया गया। कई रोज़ बाद वही इल्ज़ामात पढ़कर सुनाने वाला मुंशी उसके पास आया और कहा कि तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि तुम्हें सज़ा होगी। अव्वल तो मरोगे और अगर मौत से बचने का कुछ इम्कान भी हुआ तो तुम्हें काला पानी भेज दिया जाएगा और वही तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। अलबत्ता इन दोनों से बचने की एक सूरत है कि वादा माफ गवाह बन जाओ। मुंशी की ये बात सुनकर अमीर अली उछल पड़ा और चीखा, नहीं हरगिज़ नहीं, मुझे गद्दारी मंजूर नहीं। इसका इसरार था कि इसे फांसी दे दी जाए और इसे यकीन था कि वो बहिश्त में अपने बाप इस्माइल और बीवी अजीमा से जा मिलेगा। बहिश्त की आस लगाए बैठा हुआ था। अचानक उसे ख्याल आया। वो ज़रा नरम पड़ा, बोला, अच्छा ठीक है, इसका ख्याल सही निकला। इससे अगली बात ये पूछी गई कि तुम गणेश को जानते हो? जवाब मिला, बहुत अच्छी तरह सरकार, वो मौजूद है और सागर शहर से सिर्फ चंद कोस के फासले पर रहता है। क्या तुम उसे पकड़वा सकते हो? ये तुम्हारी पहली आजमाइश होगी। वो बोला, मैं कामयाब रहूँगा। 5-6 तवाना जवान मेरे साथ कर दीजिए। गणेश से पुराने हिसाब चुकाने का इससे बेहतर उसके पास मौका नहीं था। वो तवाना जवान ठगों का भेष बदल कर उसके साथ हो लिए। अमीर अली ने एक करीबी गांव पटेल के घर ले गया। रात बहुत हो चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने गणेश को आवाज़ दी, अपना नाम बताया और कहा कि अभी मेरे साथ चलो, बड़ा मालदार शिकार गिरफ्त में है। गणेश जैसे ही तैयार होकर बाहर निकला, तवाना सिपाही इस पर टूट पड़े और उसे वहीं जकड़ लिया। गणेश ने कहा कि मुझे यकीन था कि तुम गद्दारी करोगे। अमीर अली बोला, मुझे भी यकीन था कि मैं तुम्हें फांसी पर लटका हुआ देखूंगा। यही हुआ। कुछ रोज़ बाद 10-12 ठगों को फांसी हुई। इनमें गणेश भी था। सारे आला ज़ात के हिंदू थे। इन्हें जल्लादों का करीब आना भी मंजूर न था। उन्होंने अपने अपने फंदे खुद ही गर्दन में डाले, एक दूसरे के हाथ थामे और जय भवानी का नारा लगाते हुए फांसी के तख्ते पर से नीचे कूद गए। दूसरे ठग तो फौरन मर गए। गणेश देर तक तड़पा। अमीर अली इतनी देर तक मुस्कुराता रहा और उसे याद आया कि गणेश ने इसकी गोद से छीन कर एक बच्चे को गड्ढे में गाड़ा था और इसे लखनऊ के इस बूढ़े ठग की बात याद आई जिसने बताया था कि तुम्हारी हकीकी माँ को गणेश ने अपने हाथों से उसका गला घोंटा कर मारा था। वक्त की चाल बदल गई। अब अमीर अली के पास कुछ करने को नहीं था। वो एक एक करके अपने पुराने साथियों को पकड़वाता रहा, यहाँ तक कि कोई भी आज़ाद न रहा।
آخر میں اس نے اپنی داستان لکھنے والے سے کہا کہ میں اکثر خود سے پوچھتا ہوں کہ میں کس کے لیے جیوں، ایسی زندگی کیوں جاری رہے جس میں نہ کوئی سکھ ہو نہ کوئی دکھ۔ مجھے پچھتاوا تو ہے مگر وہ تو عمر بھر رہے گا، اسے اس وقت تک سنبھال کر رکھنا ہوگا کہ جب تک اللہ اپنے فرشتوں کو نہیں بھیجتا جو آ کر میری زندگی اور خاک جیسے وجود کی ڈور قطع کرے گا۔ بس ایک بیٹی یاد آتی ہے مگر میں اسے بھولتا جا رہا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وہ بھی مجھے بھلا کیوں یاد رکھے گی۔ میں نے اپنی زندگی کی ذرا سی تفصیل بتا دی، اب آپ دیانتداری سے ایک ٹھگ کی تصویر کھینچ دیجئے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ جب دنیا کہے گی کہ ایک ٹھگ ہوا کرتا تھا جس کا نام امیر علی تھا۔ یہاں پہ ہمارا اختتام آخری ایپیسوڈ کا ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ سعادت حسن منٹو ہیں اور دیگر موضوعات ہیں کہ جن پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو مستحکم اور استحکام عطا فرمائے، اور تمام شر پسند عناصر جو ہمارے ملک کی بیخ کنی کر رہے ہیں، جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے اور پاکستان ہمیشہ دنیا میں قائم رہے اور ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔